Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is for class 3. Subject is mathematics. Exercise 2E. This exercise has been given at pages 93, 94 and 95. Students, after watching this lesson, you will be able to know about division, know about remainder, know about dividing two-digit numbers by 10 and two-digit numbers by one-digit number. Solve question number 4, 5, 6, 7, 8, 9 and question number 10 of exercise 2E. Students, today we are going to learn about division. Students, division is equal sharing or equal grouping of numbers. ओके कि डिवीज़न जो होती है वो किसी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना या इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना होता है. लुक एट दिस इज़ अ डिवीज़न साइन. ओके, और अगर दो नंबर्स के दरमियान ये वाला साइन आए तो हमें फ़ौरन समझ आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हमने डिवाइड करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल 15 डिवाइडेड बाय 5. द नंबर टू बी डिवाइडेड इज़ कॉल्ड द डिविडेंट, just like 15, and the number which divides is called the divisor. Okay, and the result of dividing a number is called the quotient or answer. आइए अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले 15 डिवाइडेड बाय 5 को सॉल्व करने के लिए हम डिवाइडिंग बार्स लगाएंगे लाइक दिस, और 15 को इन डिवाइडिंग बार्स के अंदर राइट करेंगे. ठीक है, बिकॉज 15 इज़ डिविडेंट. और 5 को इन डिवाइडिंग बार्स के बाहर राइट करेंगे लाइक दिस, बिकॉज 5 इज़ डिवाइज़र. तो स्टूडेंट्स, जैसे मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है. आपको टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए. इसी तरह से डिवीज़न में भी अगर टेबल्स नहीं आते होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे. तो सबसे पहले अपनी टेबल्स की अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए और फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. यहाँ भी हम 15 डिवाइडेड बाय 5 को सॉल्व करने के लिए 5 का टेबल पढ़ेंगे. 5 का टेबल हमें कहाँ तक पढ़ना है? 5 का टेबल हम वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ तक 15 पूरा आ जाए. कौन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं? 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 3s are 15. ओके, 5 3s are 15, पूरा नंबर आ गया. ठीक है, अब हम डिविडेंट में से इस प्रोडक्ट को जो हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हासिल किया, इन दोनों को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. 15 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या नंबर आएगा हमारे पास? यस, 0 आ जाएगा. ओके, अब 15 को 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया? 3. 3 इज़ कॉल्ड द कोशेंट. ओके, और अगर डिविडेंड और इस प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करने से कोई भी नंबर हमारे पास आ जाए तो हम उसको रिमाइंडर कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, 15 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 3. लेट्स वी हैव 15 houses. 15 houses are dividend. The number 5 in this problem is called the divisor. This is the number we have dividing by. The divisor takes the dividend and breaks into smaller groups. In this problem, let's say we have 5 people want to share the 15 houses.
The number 5 is the divisor and the number 3 is the answer called quotient. This is the number we get after dividing the dividend by the divisor. So in this example, 15 houses are dividend and we need to separate them in between 5 people. The 5 people are divisor and other ones breaking the 15 houses into smaller groups. The houses are now split evenly in groups of 3. Do you remember what is the answer is called in this division problem? Yes, quotient. Good. So in this way we divide 15 houses in 5 people. Students, here is Sarim. Now look at the Sarim's problem. Yes, 56 divided by 7. Here 56 is dividend and 7 is divisor. First he writes the quotient. Students, do you know that why he writes the quotient first? Yes, because he knows his multiplication tables. He knows that 7 8s are 56. Okay. So he writes the quotient 7 8s are 56. Secondly, he writes the product of his quotient and divisor underneath the dividend. Okay. Thirdly, he subtracts the product from the dividend and get the remainder 0. Okay. Is that clear? Now let's move our exercise. Question number 4. Solve the following. Here A part is 42 divided by 6. अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे कि 42 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए. तो 6 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे? यस 7 तक, बिकॉज 6 7s आर 42 होते हैं. तो सबसे पहले हम इसका क्वोशंट लिखेंगे. 6 7s आर 42 लाइक दिस. अब डिविडेंड जो हमारे पास पहले से है मौजूद 42, उसमें से हम 7 और 6 की प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0. ओके. नाउ बी पार्ट इज़ 16 डिवाइडेड बाय 8. अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 16 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए. तो 8 1s आर 8 एंड 8 2s आर 16. तो सबसे पहले क्वोशंट लिखेंगे. 8 2s आर 16 लाइक दिस. अब हम डिविडेंड और इस प्रोडक्ट को जो नीचे हमने 16 लिखा इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 16 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया तो वो 0 आ गया. रिमाइंडर 0 आया हमारे पास. अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. डिवाइड एंड राइट द रिमाइंडर. हियर ए पार्ट इज़ 28 डिवाइडेड बाय 5. यहाँ हमने पहले डिवाइड करना है, उसके बाद इसका रिमाइंडर भी लिखना है. लेट्स सी. सबसे पहले हमने 5 का टेबल पढ़ना है. या तो 28 पूरा पूरा आ जाए या फिर कुछ ऐसा नंबर आए जो 28 से कम हो. इससे ग्रेटर नंबर नहीं लेना हमने. ठीक है. तो 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15, 5 4s आर 20 and 5 5s आर 25, 5 6 आर 30. तो स्टूडेंट्स, अगर हम 5 6 आर 30 लिखेंगे तो वो 28 से ग्रेटर हो जाएगा और फिर हम 28 में से 30 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे. इसलिए हमने 28 से छोटा नंबर लेना है. तो इट मीन्स कि 5 5s आर 25 लिखेंगे. ओके. जो कि 28 से करीब भी हैं और इससे लेस देन भी हैं.
नाउ सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे 5 5s are 25 लाइक दिस। अब हम 28 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले वंस वाली साइड से स्टार्ट करते हैं ना, तो 8 माइनस 5 वंस इज इक्वल टू 3 वंस, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? ओनली 3। ओके, नाउ बी पार्ट इज 19 डिवाइडेड बाय 4। अब हमने 4 का टेबल पढ़ना है, या तो 19 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या फिर 19 से कम नंबर आए। तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16 एंड 4 5s are 20। तो 4 5s are 20 तो नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि 19 20 से कम नंबर है। तो 4 4s are 16 लिखेंगे। ओके, ताकि हम 19 में से 16 को फिर सब्ट्रैक्ट कर सकें। हम 19 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू, यस, 3 1s, और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स के रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया? ओनली 3। ओके, तो अब इस क्वेश्चन नंबर 5 के भी रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वर्क आउट दीज सम्स शोइंग द रिमाइंडर। यहाँ पे हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, इनके हमने रिमाइंडर शो करने हैं आफ्टर डिवीजन। हेयर ए पार्ट इज 49 डिवाइडेड बाय 6। अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6 are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54। तो अगर हम 6 9s are लिखेंगे तो वो 54 49 से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो अब हम 6 8s are 48 लिखेंगे। ओके, क्योंकि 48 49 से स्मॉलर है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 6 8s are 48। अब हम 49 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। इज इट क्लियर? नाउ बी पार्ट इज 58 डिवाइडेड बाय 8। अब हमने 8 का टेबल पढ़ना है। तो 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6 are 48, 8 7s are 56 and 8 8s are 64। 8 8s are 64 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 64 पे काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा 58 से, इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। तो इट मीन्स कि हम 8 7s are 56 लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 7, बिकॉज 8 7s are 56 like this. Now we subtract 56 from 58. So what is the remainder? Yes, 2. Now C part is 83 divided by 9. अब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे। तो 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6 are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90। तो 90 तो 83 से बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए हम 9 9s are 81 लिखेंगे। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा
तो 9 9s are 81. Okay, now we subtract 81 from 83. तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? 2. Is that clear? Now we learn about dividing 2-digit numbers by 10. To divide a number by 10, we move that number one column to the right. Students, आपने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था कि जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वन कॉलम लेफ़्ट की तरफ मूव होता है। तो अब डिवाइडिंग में ये है कि अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो वो वन कॉलम राइट की तरफ मूव होता है। ओके, इस डिफरेंस को याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वन कॉलम लेफ़्ट की तरफ मूव होता है, जबकि डिवाइडिंग में जब हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर राइट की तरफ मूव होता है। ओके, सो वी फॉलो द अबव लॉजिक. Let's see the example. Here we divide 43 by 10. 43 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 4s are 40 होगा, तो 43 में से फिर 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 3 आ जाएगा। ये तो इसको डिवाइड करने से आया, लेकिन अगर हम इस लॉजिक को देखें कि जो नंबर हमें डिवाइड करने के लिए दिया जाता है 10 से, वो नंबर वन कॉलम राइट की तरफ मूव होता है, यानी 4 पहले टेंस वाले कॉलम में था, राइट की तरफ मूव हुआ तो वो वंस वाले कॉलम में चला गया, ओनली 4 बच गया और जो 3 था वो रिमाइंडर बन गया। ओके, तो स्टूडेंट्स रिमेंबर द डिजिट ऑन द एक्सट्रीम राइट विल बी द रिमाइंडर एंड द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ इट विल बी द क्वोशंट। ओके, मीन्स कि जो डिजिट दिया जाता है बिल्कुल राइट साइड वाला जो नंबर होता है वो रिमाइंडर होता है और उससे लेफ़्ट साइड वाले जो नंबर्स होते हैं वो सब क्वोशंट होते हैं। 1 हो, 2 हो या 3 हो, जितने भी हों वो सब क्वोशंट कहलाएंगे। ठीक है, इसी डेफिनेशन को आपने जहन में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7। इसे अब हम सॉल्व करते हैं। राइट द क्वोशंट्स शोइंग द रिमाइंडर वेयर नेसेसरी, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हेयर ये पार्ट 51 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ उन्होंने 51 को 10 से डिवाइड किया तो 5 क्वोशंट आ गया और 1 रिमाइंडर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जिस नंबर को हम 10 से डिवाइड कर रहे होते हैं उसमें से उस नंबर का बिल्कुल जो राइट साइड वाला नंबर होता है वो रिमाइंडर बनता है, जैसे कि यहाँ पे है रिमाइंडर 1, और लेफ़्ट साइड वाला जो नंबर होता है वो क्वोशंट होता है। ठीक है, इसके लिए हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम उस डेफिनेशन को समझ लेंगे तो ये फ़ौरन से इसका आंसर बता सकेंगे। तो आप अपने बी पार्ट इसका खुद सॉल्व करना है। मैं आपको सी, ई, जी और आई पार्ट सॉल्व करके दूंगी, बाकी के आपने खुद सॉल्व करने हैं। सी पार्ट इज़ 999 डिवाइडेड बाय 10, तो इसमें से रिमाइंडर क्या होगा? यस 9, क्योंकि ये राइट साइड पे है, 9 रिमाइंडर है और 99 क्या हो जाएगा? क्वोशंट। यस, नाउ ई पार्ट इज़ 408 डिवाइडेड बाय 10, तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा? यस 8 होगा और क्वोशंट 40। नाउ जी पार्ट इज़ 80 डिवाइडेड बाय 10, तो इसमें हमारे पास रिमाइंडर क्या है? 0 और क्वोशंट यस 8 है। नाउ आई पार्ट इज़ 201 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या है? 1 और क्वोशंट यस 20। ओके, इज़ इट क्लियर? गुड. Now question number 8, fill in the blanks.
Here A part is 78 divided by dash is equal to 7 and remainder 8. स्टूडेंट्स REM का मतलब रिमाइंडर है, रिमाइंडर की ये शॉर्ट फॉर्म है। तो अब 78 को हम किससे डिवाइड करते हैं कि आंसर ये आ जाता है, यानी रिमाइंडर 8 आता है और क्वोशंट 7 आता है। यस 10 से। अभी आपने पीछे सीखा कि जब हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसके लेफ़्ट साइड वाला नंबर क्वोशंट होता है और राइट साइड वाला नंबर रिमाइंडर होता है। ठीक है। नाउ बी पार्ट इज़ डैश डिवाइडेड बाय 10 इज़ इक्वल टू 62 रिमाइंडर 4, यानी 62 क्वोशंट है और रिमाइंडर 4 है। तो इट मीन्स कि 10 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? यस 624 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके। नाउ सी पार्ट इज़ 940 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू यस 94 quotient remainder 0. Now D part is 49 divided by dash is equal to 4 quotient remainder 9. तो 49 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? यस 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आंसर हमारे पास आता है क्वोशंट 4 एंड रिमाइंडर 9। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अब रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। ओके। Now next question is question number 9. Work out this. Here A part is 69 divided by 3. Students यहाँ डिविडेंड हमारे पास 69 है, काफ़ी बड़ा नंबर है, जबकि डिवाइज़र 3 है। 69 से काफ़ी छोटा नंबर है, जबकि 69 इससे काफ़ी बड़ा नंबर नज़र आ रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा जी? अब हम 6 10s को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है। 3 का टेबल पढ़ेंगे, पहले 6 को डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर वंस वाले कॉलम में जो 9 है उसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? लेट्स सी। 3 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या फिर 6 से कम नंबर आए। तो 3 1s are 3 and 3 2s are 6, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी 3 2s are 6। पहले क्वेश्चन राइट करेंगे, उसके बाद इसकी प्रोडक्ट 6 लिखेंगे। अब हमने ऊपर वाले 6 में से नीचे वाले 6 को माइनस करना है। तो 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके। इट मीन्स के 10s को हमने डिवाइड कर लिया। अब वंस वाले कॉलम को डिवाइड करना है, तो 9 को नीचे हम लेके आएंगे। तो अब हम 3 का टेबल फिर से पढ़ेंगे, या तो पूरा 9 आ जाए या फिर 9 से कम नंबर आए। तो 3 1s are 3 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0, बिकॉज 9 - 9 इज इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ गया आपको? लेट्स सी द बी पार्ट। 48 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ हम देख रहे हैं कि 48 काफ़ी बड़ा नंबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले 4 10s को डिवाइड करेंगे। ठीक है। 4 10s को डिवाइड करने के बाद फिर हम 8 1s को डिवाइड करेंगे। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, तो 4 1s are 4, पूरा पूरा नंबर आ जाएगा। अब 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 रिमाइंडर आया। अब हम जो 8 1s है उसको नीचे उतार लेंगे। अब 4 का टेबल दोबारा पढ़ेंगे, या तो 8 पूरा आ जाए या फिर 8 से कम नंबर आए। तो 4 2s are 8। ओके, ये भी पूरा पूरा आ गया। अब 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0। इट मीन्स के 4 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स आपने इसी तरीके से पहले 10s वाले कॉलम को सॉल्व करना है,
डिवाइड करना है और उसके बाद फिर वंस वाले कॉलम को डिवाइड करना है। ओके, इज़ दैट क्लियर? ठीक है, अब आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स सब खुद सॉल्व करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व एंड राइट द रिमाइंडर एंड कोशेंट। Here A part is 67 divided by 3। यहाँ भी हम सबसे पहले टेंस वाले कॉलम को डिवाइड करेंगे। 3 2s are 6, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब हमें इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। और ऊपर से अब वंस वाले कॉलम में से 7 को हम नीचे उतारेंगे। तो अब 3 2s are 6, क्योंकि 3 के टेबल में पूरा 7 नहीं आएगा, इसलिए हम 7 से कम नंबर 6 को लिखेंगे। 3 2s are 6। अब 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 रिमाइंडर है, जबकि कोशेंट 22 है। ओके, बी पार्ट इज़ 29 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ भी हम सबसे पहले टेंस वाले कॉलम से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 1s are 2, 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। अब वंस वाले कॉलम में जो 9 है वो भी नीचे उतारेंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 9 पूरा पूरा आ जाए या फिर 9 से कम नंबर आए। यस, 2 के टेबल में 9 तो आता ही नहीं है पूरा, तो फिर हम 9 से कम नंबर लिखेंगे। 2 4s are 8। ओके, अब 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 रिमाइंडर होगा, क्योंकि इससे आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। और कोशेंट आ जाएगा 14। ठीक है, इस क्वेश्चन के भी रिमेनिंग पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं अच्छी तरीके से। सो व्हाट शुड वी डू नाउ? यस, योर होमवर्क। डू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 9 and question number 10 of exercise 2E. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.